Namaskar, myself Saurav Patil. I welcome you all to our new series. In this series, we are going to shoot our lectures on NetZarep, UGC NetZarep paper 1, right? So, firstly, we are going to look towards research aptitude. So, when we are going to study research aptitude, it becomes important to analyze the previous year questions, right? So in today's session, we are going to look towards questions that were being asked from 2004 to 2009, particularly on research aptitude. So there are going to be 51 MCQs that we are going to discuss today, and with me you are going to solve them. So you can have pen and paper, or you can just guess in mind, right? So before starting, I would like to request you all to please subscribe to my channel, and if you like the video, then like it and share it. Thank you. So let's start it. So this is your syllabus of research aptitude, right? So there are basically these are the subunits, you can say. So in unit 2, we have the research aptitude. So in research, meaning, types, characteristics of the research, then the positivism, post-positivistic approach to the research, right? Then the methods of research, within that the experimental, descriptive, historical, qualitative, quantitative methods and steps of the research, right? And then the thesis and article writing, within that format and style of referencing, then the application of ICT in research and research ethics. So when we are going to analyze these questions, just keep these keywords in mind. So suppose experimental research, descriptive research, historical research, or you can say steps of research. Or so these are some types: qualitative, quantitative, right? So thesis writing, methods of writing, so hypothesis, etc. These are some keywords, right? So within this syllabus, these are many keywords. So just remember the keywords. And when we are going to analyze the question, you will again and again in every question you will find, we are going to find each of these keywords, right? So let's start, guys. So December 2004, we are going to look. So question 1 is, a college wants to give a training in use of statistical package of for social sciences SPSS to researchers. For this, college should organize, college को अगर ये पैकेज देना है स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेस की रिसर्च के रिगार्डिंग, तो कॉलेज ने क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए? कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके बच्चों को देना चाहिए, सेमिनार, वर्कशॉप और लेक्चर. सो we all know that this was the very, like sort of simple question. So answer is like going to be workshop, right? So you can eliminate other all options. So which of the following is not a characteristic of the research? Research के क्या characteristic नहीं है, right? So research is systematic. Yes, we all know that research is always systematic. Research is not a process. So यही हमें आंसर मिल जाता है कि रिसर्च कोई प्रोसेस नहीं होता. ऐसे कोई क्यों कह सकता है? मतलब ही नहीं है इस कोई ऑप्शन का. रिसर्च इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड. We all know that research is a not passive, research is always active. So you can easily mark this, right? And पहला आंसर था ये वाला, workshop. So let's go. Then the which of the following statement is correct? So there are some statements, right? Discoveries are researches. Second is researches lead to discovery, right? Then the invention and research are related. And fourth is none of the above. हम हमें correct याद रखिए, correct statement ढूंढना है. तो discoveries are researches और researches lead to the discovery. Discovery बाद में आएंगी, researches lead to the discovery, right? So this is one is a correct statement. Then which of the following statement is correct? So again हमें यहाँ पे correct statement पूछा गया है. So let's read. In research, objectives can be worded in question form. जो research के जो objectives होते हैं वो question form में word किए जाते हैं, ठीक है? Then in research, objectives can be worded in a statement form, right? This is your second statement. Then the objectives are to be stated in chapter 1 of the thesis and all of the above. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म दिया है यहाँ पे और यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म दिया है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं क्या? नहीं, तो पहला ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा. अब ये स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं, ऐसा अगर आप कहोगे, देन ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी स्टेटेड इन चैप्टर 1 ऑफ द थीसिस, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, ठीक है? सो योर आंसर इज गोइंग टू बी सी, राइट? अगर आप क्वेश्चन देखो तो इतनी इजी होते हैं, हम इजीली इनको सॉल्व कर पाते हैं, मतलब जस्ट सेंस पे. आप जस्ट एक बार भी अगर आपने रीडिंग अच्छे से पढ़ा है और क्वेश्चन प्रीवियस एनालाइज करेंगे ना, तो आने वाले एग्जाम में भी आप इजीली ऐसे एलिमिनेट कर पाओगे अदर ऑप्शन.
सो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, मैच लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, हमें इससे मैच द पेयर्स करना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज हिस्टोरिकल मेथड, राइट। सो अगर आप ऑप्शंस देखोगे, फ्यूचर रिएक्शन, एक्सेप्शनल केसेस, प्रेजेंट इवेंट्स, विजन एंड पास्ट इवेंट। हिस्ट्री मतलब क्या है, पास्ट इवेंट्स। सो ए का एक आएगा, मतलब इजीली यू कैन लुक टुवर्ड्स ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस हैविंग ए का एक ही। सो लेट्स गो फॉर द सर्वे मेथड, देन द फिलोसॉफिकल मेथड, देन द एक्सपेरिमेंटल मेथड, राइट। सो यहाँ पे जो सर्वे मेथड है वो हम एक सर्वे, जब हम कोई एक सर्वे के लिए जब हम जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चनरी होता है, so you can just guess that the survey method is related, we have some sort of vision, right, when we go for any survey, right। so survey method का आएगा vision, so दो का दो ही आएगा। then the philosophical method हमें exceptional cases के लिए यूज करते हैं, and the experimental method we goes for the future action, right। so इसका आएगा बी, ठीक है। Then the 2005, December 2005. So one of the following is not a quality of researcher. रिसर्चर की कौन सी क्वालिटी नहीं होती है, देखिए, यूनिसन विद द विच ही इज इन रिसर्च, ठीक है। देन ही मस्ट बी अलर्ट माइंड, अलर्ट माइंड तो होना ही चाहिए रिसर्चर को। किन्नेस इन इंक्वायरी, इंक्वायरी तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की इंक्वायरी करना, ठीक है। हिज assertions टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो यू कैन इजीली go for this D, ठीक है। A satisfactory statistical quantitative method should not possess one of the following, यहाँ पे मार्क कीजिए स्टैटिस्टिकल और क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो इंपेरिकल होता है, ठीक है, डाटा के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर वो इंपेरिकल होता है तो उसमें अप्रोप्रिएटनेस आएगा, मेजरेबिलिटी आएगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव है तो मेजरेबिलिटी आएगी। और क्या होता है कि आप जब क्वांटिफाई किसी चीज करते हो, मेजर करते हो, तो मतलब कंपेयर भी करते हो आप चीजों को, तो एप्रोप्रिएटनेस, मेजरेबिलिटी और कंपेरिटी आएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कब होती है, जब आपका कोई अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो, ठीक है, या नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स आपके जब होते हैं, तब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है क्वांट में, क्वांटिटेटिव मेथड्स में मोस्टली, और उसमें भी स्टैटिस्टिकल डाटा एक्सेट्रा में। देन द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डाटा। बुक्स और रिकॉर्ड्स पूछा गया है, तो बुक्स और रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब पीछे आर्काइव में जाना पड़ेगा, तो इसका आंसर हिस्टोरिकल आएगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देन ऑब्जेक्टिव्स शुड बी पिन पॉइंटेड, ठीक है, ये पूछा गया है। देन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रिटन इन ए स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर, हमने देखा है कि ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन इन स्टेटमेंट और क्वेश्चन, हम पहले आ गया था एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर, उसमें दो स्टेटमेंट्स थे कि ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन इन क्वेश्चन फॉर्म और ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन इन स्टेटमेंट फॉर्म, दोनों भी स्टेटमेंट्स गलत थे, हमने पहले क्वेश्चन में देखा है, तो यहाँ भी ये भी जाएगा। अनदर वर्ड फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल, ये अनदर वर्ड फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल, प्रॉब्लम का अनदर वर्ड वेरिएबल है क्या, नहीं, वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी प्रॉब्लम में अंडर होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये एलिमिनेट किया, तो ये भी जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड, ठीक है। देन द इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर अ रिसर्चर इन साइंस, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर रिसर्च इन साइंस में भी, सोशल साइंसेस में भी, ह्यूमैनिटीज में, करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा ये, ठीक है, सुपरवाइजर, टॉपिक, critical analysis and patience. Then which of the following options are the main task of the research in modern society, कि क्या क्या होता है उसमें रिसर्च में जब हम जाते हैं। टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, बिल्कुल, करंटली हमें रिसर्चर को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट वन। टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज। टू डिस्कवर न्यू थिंग, डिस्कवरी के लिए तो रिसर्च होता है, क्यूरियस होते हैं हम लोग, डिस्कस करते, मतलब डिस्कवर करते हैं चीजें। टू राइट क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, लिटरेचर रिव्यू एक पार्ट होता है रिसर्च का, लेकिन टू राइट अ क्रिटिक ऑन अर्लियर राइटिंग्स, ठीक है, ये भी एक सही लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा वेट करते हैं। देन टू सिस्टमेटिकली एग्जामाइन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशंस एंड सोर्सेस विद द ऑब्जेक्टिविटी, ये एकदम बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू में और हम प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम जब जस्ट मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम पहला स्टेप यही करते हैं। सो 4 तो बिल्कुल होना चाहिए, 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 4 होने वाले ये दोनों ऑप्शन है, 4 2 1 और
2, 3 और 4। तो हमने 1 और 2 को बिल्कुल मतलब डिस्कवर न्यू थिंग्स और टू कीप पेस विद एडवांसमेंट इन नॉलेज हमें बिल्कुल सही लग रहा है, तो 1, 2 और 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, देन अगेन मैच द फॉलोइंग देख लीजिए, मतलब इंटरव्यूज, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज, फोकस्ड इंटरव्यूज और क्लिनिकल इंटरव्यूज। अब स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होता है पहले से डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो इसका आएगा प्री डिटरमाइनेड क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रक्चर इंटरव्यू में पहले से जब हम किसी सर्वे के लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चनरी लेके जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में पहले से क्वेश्चन डिसाइड होते हैं, तो उसका आएगा 4। तो 1 का 4 मतलब एक ही ऑप्शन है, देख लीजिए, आपको बाकी की देखने भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत देखिए, सीधा आपका टाइम बचाइए, लेकिन फॉर सेक ऑफ डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर ऑप्शन। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ऐसे पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं होता है, तो उसका आएगा 1, जो यहाँ पे लिख दिया गया है। देन फोकस्ड इंटरव्यूज, फोकस्ड इंटरव्यू मतलब किसी चीज पे ज्यादा फोकस देना, अटेंशन ऑन द क्वेश्चन, फोकस्ड अटेंशन, राइट। एंड देन द क्लिनिकल इंटरव्यूज, क्लिनिकल इंटरव्यूज का क्या आएगा कि इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पे क्लिनिक्स होते हैं ना, हम अच्छे से साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स होते हैं, तो इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस पे फोकस रहता है। सो आंसर इज दिस। This is the explanation. You can just have a screenshot of this. What is clinical interview, focus interview, structured interview, unstructured interview, structured interviews, etc. What do you consider as the main aim of a interdisciplinary research? Interdisciplinary मतलब क्या होता है? कोई कमेंट करेगा? इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी मतलब सपोज पॉलिटिकल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो पॉलिटिकल इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी इज फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, राइट। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी हो गया, हम कहते हैं कि सोशियो साइकोलॉजिकल, ठीक है, या पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल इवेंट्स में भी हम साइकोपॉलिटिकल बोलते हैं, पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल ऐसे भी बोलते हैं। तो किसी दो सब्जेक्ट को इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से दोनों फील्ड के अप्रोचेस का यूज करके किसी चीज को रिसर्च में लेके आना। सो लेट्स जस्ट रीड द टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑन सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन, ये तो नेगेटिव लग रहा है। टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम रिसर्च, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, जस्ट टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड तुम कुछ लेके आओगे क्या? नहीं। तो टू ब्रिंग आउट अ होलिस्टिक, क्योंकि हम क्या करते हैं कि 2-3 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे अप्रोचेस, अलग अलग अप्रोचेस लेके आके रिसर्च करते हैं, तो होलिस्टिक हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज आंसर। वन ऑफ द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू, वन ऑफ द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू, इसका आंसर क्या आएगा कि जस्ट लेट्स रीड दिस। इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन इंप्रूव करने के लिए हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं क्या? यू कैन थिंक ऑन दैट। एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशंस, कन्फर्म ट्रायंगुलेशंस, इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स। कोई जस्ट न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च का वो मेन एम होता है क्या? नहीं। तो इसका आंसर आता है टू एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशंस। देन द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, किसी भी रिसर्च के डेप्थ हमें जज करनी है, तो हम कैसे करेंगे, क्या देखेंगे? टाइटल ऑफ द रिसर्च, बस टाइटल पर क्या मतलब उसकी डेप्थ जानोगे क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, मतलब सीधा सा क्वेश्चन है कि किसी रिसर्च पे अगर इतना एक्सपेंडिचर हुआ है मतलब इतनी उसकी डेप्थ है, ये तो बिल्कुल फिजूल बात है। ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, कि हाँ किसी चीज को 5 साल लगे इसका मतलब बहुत डेप्थ है, या 10 साल से रिसर्च हो रहा है मतलब बहुत डेप्थ स्टडी है क्या? नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही पता चलेगा आपको कि रिसर्च एक्चुअली क्या करना चाह रहा है, कितनी उसकी डेप्थ है, राइट। लेट्स December 2006 क्वेश्चन नंबर 16, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, रिसर्च कौन कर सकता है? ही हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी, होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, इज अ हार्ड वर्कर। सीधा सा क्वेश्चन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसने स्टडी की है वही अच्छे से रिसर्च कर सकता है। जस्ट कोई पोस्ट ग्रेजुएट है या जस्ट कोई हार्ड वर्क है इसका मतलब रिसर्च नहीं कर सकता ना। ही नीड टू स्टडी और शी नीड टू स्टडी द रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च आर स्टेटेड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस, देखो ये स्टेटमेंट फिर से आया है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें सबको बताया, हम क्योंकि पहले क्वेश्चंस में हमने देखा है। रिसर्चर मस्ट पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी, बिल्कुल रिसर्चर को पास एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए चाहिए। वेरिफाइबिलिटी
इज द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, ये भी सही है। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च की कौन सी मेथड नहीं है? ऑब्जर्वेशन, रिसर्च में ऑब्जर्वेशन होता है। हिस्टोरिकल मेथड होती है, हमने देखा है, सिलेबस में ही दिया है। सर्वे भी हम यूज करते हैं, सर्वे मेथड भी होता है, फिलोसॉफिकल मेथड भी होती है। तो अब क्या आंसर है? सो हिस्टोरिकल इज अ मेथड, सर्वे मेथड होता है, फिलोसॉफिकल मेथड होता है। इसका आंसर उन्होंने दिया है ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक, मेथड ऐसी नहीं है, ऐसे उनका कहना है। सो can be confused ambiguous question, but answer is observation as of now. Research can be classified as basic, applied, action research, quantitative, qualitative research, philosophical, historical, survey and experiment। देखो मतलब इसका आंसर अगर आपको आता भी नहीं ना, तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आप इसका आंसर दे सकते थे। फिलोसॉफिकल यहाँ दिया है, हिस्टोरिकल यहाँ दिया है, सर्वे यहाँ दिया है, तो इसका आंसर ऑब्जर्वेशन ही आएगा। एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ही साल के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है। सो ऑल दिस इज राइट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बेसिक, अप्लाइड, एक्शन। दिस इज एक्सप्लेनेशन, यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज सिलेक्ट अ प्रॉब्लम, सर्चिंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपने बेसिक पे जो आपने रिवाइज किया है, जहां से आपने पढ़ा है, एकदम फॉर्मली होके, क्योंकि प्रॉब्लम चार ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, राइट। सो मेजर स्टेप्स इन कंडक्टेड रिसर्च आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, स्पेसिफाइंग द पर्पज ऑफ रिसर्च, determining the specific research questions, specification of conceptual framework, usually a set of hypothesis, choice of methodology, data collection के बाद verifying the data, analyze and interpret the data, reporting and evaluating the research, communicating the research findings, and possibly at the end recommendations. So this is here only also. So June 2007, to test null hypothesis, a researcher uses, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर क्या यूज करता है? इसका आंसर है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, यू कैन जस्ट लेट अस गो थ्रू दिस, यू कैन एज ऑफ नाउ जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट। दिस इज अगेन एक्सप्लेनेशन ओनली, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज एनोवा, एक्सेट्रा, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन नंबर 22, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ फिजिबल ओनली व्हेन, क्या क्वेश्चन पूछा है? रिसर्च प्रॉब्लम इज अ फिजिबल only when it has a utility and relevance, बिल्कुल सही लग रहा है। it is a researchable, it is a new and add something to the knowledge, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बिब्लियोग्राफी गिवन इन द रिसर्च रिपोर्ट, बिब्लियोग्राफी क्यों दी होती है? आप किसी भी, अगर आप देखो, आप कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट उठा के पढ़ते हो, या कौन सी भी अच्छे बुक के एंड में, या किसी भी आर्टिकल के एंड में हमें बिब्लियोग्राफी मिलती है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि बिब्लियोग्राफी क्यों देते हैं लोग? shows vast knowledge of the researchers, ऐसा है क्या? नहीं। helps those interested in the further research, सही लग रहा है। has no relevance to research, अगर relevance रिसर्च से क्या रिलेवेंस ही नहीं है, तो बिब्लियोग्राफी को कोई देगा? ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एलिमिनेट हो गया है। कोई अपना नॉलेज शो करने के लिए बिब्लियोग्राफी देता है कि नहीं? इसका सीधा सा आंसर है helps those interested in further research, इसलिए बिब्लियोग्राफी दी जाती है। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द, क्या क्वेश्चन है? फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, क्या एबिलिटी क्या होता है कि फंडामेंटल रिसर्च में कौन सी एबिलिटी हमें दिखती है? सिंथेसाइजेस न्यू आइडियल्स, एक्सपाउंड द न्यू प्रिंसिपल्स, इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग द रिसर्च, स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग द वेरियस टॉपिक्स। देखो, एग्जिस्टिंग लिटरेचर हम स्टडी करते हैं, इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल, लगभग दोनों भी ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं, ठीक है। एक्सपाउंड द न्यू प्रिंसिपल, किसी भी रिसर्च के बाद हम कुछ नया इन्वेंट करते हैं, कुछ नए चीज की खोज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज, क्या है? इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट, इफेक्ट को ट्रेस करना है, तो इसका आंसर है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है। So December 2007, generalized conclusions on the basis of sample.
जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है, और कंक्लूजन, जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स वर्ड यूज किया है, इज टेक्निकली नोन एज, सैंपल के बेसिस पे हमें कुछ कंक्लूड किया है उन लोगों ने, तो सीधा सा मतलब है इसका पैरामीटर इन्फ्रेंस होगा क्या, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, मतलब स्टैटिस्टिक्स का यूज है कि नहीं ये नहीं पता, पैरामीटर इन्फ्रेंस भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका सीधा सा आंसर तुम अगर पहला ऑप्शन पढ़ोगे डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कि कोई सैम्पलिंग का डाटा उन्होंने यूज किया है, इसका मतलब सैंपल्स है तो इसका डाटा एनालिसिस करेंगे, और डाटा एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, और इंटरप्रिटेशन मतलब ही जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स होते हैं, तो ये आंसर है इसका। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, क्या पूछा है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, याद रखिए वर्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, एम्पिरिकल स्टडी, ऑब्जर्वेशन, तो इसका आंसर है ये, द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज और आर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, मैंने अभी बोला एम्पिरिकल आएगा, एक्सपेरिमेंट भी आएंगे उसमें, अगर ये दोनों ऑप्शन आएंगे तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, वो थियोरेटिकल भी होगा, ठीक है। ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी किसके ऊपर, ऑथेंटिसिटी मतलब क्या, प्योरिटी, उसका साइंस, उसका कुछ बेस होना, सीधा सा मतलब है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कितना उसमें ट्रूथ है, ठीक है। विच ऑफ द टेक्निक इज जनरली फॉलोवेड व्हेन द पॉपुलेशन इज अ फाइनाइट, कि मतलब कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और आपको वहां पे रिसर्च करने के लिए जाना है, तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे, एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, सिस्टमेटिकली सैम्पलिंग टेक्निक, और नन ऑफ द अबव, इसका आंसर है सिस्टमेटिक। अगर आप ब्रायन का रिसर्च मेथोडोलॉजी का बुक पढ़ते हो तो उसमें सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स दिए हैं, उसमें उन्होंने डिवाइड किया है कि क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग मेथड्स और क्वालिटेटिव सैम्पलिंग मेथड्स, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में एक क्वेश्चन क्वांटिटेटिव मेथड्स का है, क्वांटिटेटिव मेथड में उसने फिर से प्रोबेबिलिटिक और नॉन प्रोबेबिलिटिक ऐसे दो मेथड्स में डिवाइड किया है, तो इसमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो होता है वो पहला प्रकार आता है क्वांटिटेटिव मेथड में, जो प्रोबेबिलिटिक चीजें मेथड होते हैं सैम्पलिंग के उसमें, ठीक है, इसमें ये डिस्कस करता है, यू कैन जस्ट रीड दैट। रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, इसके दो आंसर्स दिए गए थे अलग अलग सोर्सेस पे, ठीक है, तो रिसर्चर इंटरेस्ट भी हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट के हिसाब से तो आप रिसर्च प्रॉब्लम थोड़ी देखोगे कि मेरे पास इतना पैसा है तो मतलब मैं ये रिसर्च, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर, कि हाँ ये बहुत लिटरेचर अवेलेबल है मेरे फील्ड में तो मैं ये रिसर्च करूंगा, ऐसे भी नहीं, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है लेकिन इसके बेसिस पे आप नहीं डिसाइड करते हो रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिसर्चर इंटरेस्ट के बेसिस पे एक जगह पे आंसर दिया गया था इसका, और सोशल रिलेवेंस, ज्यादा तो रिलेवेंट मुझे सोशल रिलेवेंस ही लग रहा है कि समाज में किसका ज्यादा रिलेवेंस है, उसके हिसाब से हम रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन रिसर्चर के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, सो कंफ्यूजिंग है लेकिन यू कैन जस्ट लुक दैट। विच वन इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रोबेबिलिटिक सैम्पलिंग, देखो फिर से आगे मैंने अभी डिस्कस किया था, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग तो नॉन प्रोबेबिलिटिक नहीं, मतलब नहीं है, प्रोबेबिलिटिक में आता है, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये तीनों जो प्रकार है ना, ये सब प्रोबेबिलिटिक सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटिक में ये कोटा मेथड आता है, इसका आंसर है कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, क्योंकि कोटा सैम्पलिंग मोस्टली मार्केटिंग स्टडीज में यूज किया जाता है, जो एमबीए वगैरह करने वाले बच्चे होते हैं, मतलब पर्टिकुलरली। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन, हाइपोथेसिस की जरूरत किसमें नहीं है, मतलब नहीं हो सकती है, सर्वे मेथड में हाइपोथेसिस चाहिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एम्पिरिकल स्टडीज में चाहिए ही चाहिए, नॉर्मेटिव में भी चाहिए, हिस्टोरिकल मेथड्स में जरूरत नहीं होती है, मतलब होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, फील्ड वर्क का यूज किया है, सीधा सा आंसर है एम्पिरिकल है, कि आप जाके फील्ड पे जा रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड is appropriate to the study in prevalence of AIDS amongst the male and female in India 1976, 86, 96, 2006 में जो सर्वे किया गया था उसमें कोटा सैम्पलिंग तो मार्केटिंग के रिलेटेड है तो ये बिल्कुल हटा दीजिए वहां पे, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तो इसका आंसर है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। हमने अभी देखा था जब पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, दिसंबर 2008। The research is always verifying the old knowledge, exploring the new knowledge, ठीक है, then finding the gap between the knowledge, all of the above.
तीनों के ऑप्शंस मिलते जुलते लग रहे हैं, तो सीधा सा आंसर है ऑल ऑफ द अबव. The research that applies the laws at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is. The research that applies the laws. Laws apply करने की बात कर रहे हैं, किसी भी laws लेके आ रहे हैं, ठीक है. On the field study. Field study पे laws apply करने हैं to draw more and more clear ideas. तो laws apply करने मतलब applied research पहले ऑप्शन दिया है, गलती से मत मार के आ जाइएगा. एक्शन रिसर्च है क्या, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, हमें देखना है. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोई भी एक्सपेरिमेंट में कुछ लॉज होते हैं, उस लॉज फॉलो करते ही एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट किया जाता है. तो इसका आंसर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. When a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable sampling method is. heterogeneous population है, homogeneous population में कौन सी रिसर्च मेथड यूज करनी होती है, यू कैन जस्ट कमेंट दैट इन कमेंट बॉक्स. हमें अभी क्वेश्चन पूछा है कि हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन में मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग की मेथड क्या होती है. ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, याद रखिए. स्टार्टास किए जाते हैं लोगों के हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन में. स्टार्टास मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एज हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ऐसे स्ट्राटा किए जाते हैं, डिविजन्स किए जाते हैं और फिर सैम्पलिंग किया जाता है, मोस्टली कॉम्प्रिहेंसिव सैंपल होने के लिए. द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मतलब जरूरी नहीं है इस प्रोसेस का होना. ऐसे कौन से प्रोसेस है, मैंने अभी बताया था कि हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में करना पड़ेगा, तो ये तो आएगा ही, ठीक है. फिर इसके बाद मैनिपुलेशन और रिप्लिकेशन तो आएगा ही, क्योंकि किसी भी वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन और रिप्लिकेशन होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में. तो बचता है ऑब्जर्वेशन और रेफरेंस कलेक्शन. तो दो सोर्सेस थे, एक सोर्स में ऑब्जर्वेशन आंसर दिया है और एक सोर्स में रेफरेंस कलेक्शन आंसर दिया है. सो एम्बिगुअस है. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A research problem is not feasible only when. कब रिसर्च प्रॉब्लम feasible नहीं होता है. It is a researchable है तो new and add something to the knowledge. ये एक ऑप्शन हमने प्रीवियस भी कोई क्वेश्चंस में देखे हैं, ठीक है. It has utility and relevance. यूटिलिटी और सोशल रिलेवेंस भी हमने देखा है. Adds the new to the knowledge हमने देखा है, रिसर्चेबल भी देखा है. तो इसका आंसर ये है. It consists of independent and dependent variable. ठीक है. सो जून 2009, हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी इनहैंस्ड. किसी भी रिसर्च की हमें ऑब्जेक्टिविटी इनहांस करनी है. ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, ट्रूथ फाइंडिंग, ज्यादा प्योर साइंटिफिक होने के लिए. तो थ्रो इम्पार्शियलिटी, बिल्कुल सही. ऑब्जेक्टिविटी मतलब ही इम्पार्शियलिटी होता है. थ्रो द रिलायबिलिटी, बिल्कुल सही है, रिलायबल सोर्सेज यूज करने होते हैं. थ्रो द वैलिडिटी, ये भी सही है, वैलिड होनी चाहिए चीजें, वैलिडिटी इंपॉर्टेंट कहते हैं. इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव. एक्शन रिसर्च इज. एक्शन रिसर्च क्या होता है बताइए, कोई बताएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. एक्शन रिसर्च क्या होता है. एक्शन रिसर्च होता है रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व अ इमीडिएट प्रॉब्लम. कोई इमीडिएट प्रॉब्लम हमें अगर फेस कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हम कैरी आउट रिसर्च करते हैं वो एक्शन रिसर्च होता है. सपोज कोई भी डिजास्टर आ गया तो हमें जल्दी से कुछ, ठीक है, या कोई भी एकदम एपिडेमिक आ गया, कोई भी एकदम कुछ भी इशू एकदम स्पॉन्टेनियस सा चीज आ गई, तो हम जो रिसर्च करते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च होता है. द बेसिस ऑन विच एजम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड. एजम्पशन किस बेसिस पे फॉर्मुलेट करते हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उसके बेसिस पे, या आपके कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे, नहीं, आपका कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री का ओवरऑल जो होता है उसके हिसाब से आप अपने एजम्पशंस फॉर्मुलेट करते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन ए कैटेगरी ऑफ द डेवलपमेंटल रिसर्च. डेवलपमेंटल रिसर्च में क्या आएगा, डेवलपमेंटल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च भी आएगा, एक्शन रिसर्च भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आएगा. इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव. वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस. फैक्टोरियल एनालिसिस हम कब यूज करते हैं, फैक्टोरियल एनालिसिस, ठीक है. फैक्टोरियल एनालिसिस हम यूज करते हैं टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स के बीच में जब हमें डिफरेंस जानना होता है तो हम फैक्टोरियल एनालिसिस यूज करते हैं. लास्ट 5-6 क्वेश्चंस. A null hypothesis is when there is a no difference between the variables, the same as a research hypothesis, subjective in nature, when there is a difference between the variables. null hypothesis के ऊपर पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है. null hypothesis क्या आता है, when there is a no difference between the variables. उसी टाइम पे हम उसको null hypothesis कहते हैं. The research which is exploring the new facts through the study of past. न्यू फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना है और हमें पास्ट का स्टडी करना है, सीधा सा मतलब है हिस्टोरिकल रिसर्च.
कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसके हिसाब से आप सेंस कर सकते हो। एक्शन रिसर्च इज, देखो फिर से आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, हमें इसका आंसर पता है, रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व द इमेजेस प्रॉब्लम। ये होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कौन सी? ऑब्जर्वेशन। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ, मतलब दो क्वेश्चन हमें रिपीट मिले हैं। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ, देखो मैनिपुलेशन के ऊपर भी आ गया। मैनिपुलेशन कौन से स्टडी में होता है, हमने अभी अभी देखा था। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ, इसका आंसर है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जब आप कोई चीज डिस्क्रिप्ट करते हो तो आपके पास उसकी एजेंसी होती है, रिसर्चर के पास एजेंसी होती है, तो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है वो, और उसके, लेकिन उसके मैनिपुलेट करने के लिए उसको कुछ बेस चाहिए होता है, नहीं तो कुछ भी लिखेगा उसको रिसर्च नहीं कहेंगे। ये क्वेश्चन है कुछ थोड़ा साइंटिफिक सा क्वेश्चन है कि विच कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस का कोएफिशिएंट पूछा है, तो इसका आंसर है ये। So these were the 55 questions from 2004 to 2009, right? So we done all the questions. My basic motto aim was, so previous year questions आपके एक बार जाएंगे ना दिमाग से, तो जब आप कोई भी चीज पढ़ने के लिए बैठोगे, इसके लिए रिवीजन करने बैठोगे या कोई भी और चीज से सॉल्व करने बैठोगे, तो क्वेश्चन के आंसर तक कैसे जाना है, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये बस हमें जानना था। सो दिस वाज द पार्ट ए। अगेन वी आर गोइंग टू मेक द स्टडीज नेक्स्ट वीडियो ऑन द 2009 तो हो गया है, 2010 से 2014-15 तक कवर करेंगे, और उसके बाद का एक जो वीडियो आएगा बचे हुए क्वेश्चन हम 2015-16 से लेके 2020-21 तक रिसेंटली, ऐसे 3 या 4 पार्ट्स हम शायद बनाएंगे। 50 क्वेश्चंस के आधे घंटे के वीडियोस होंगे। So aim was that only, because most of you might gone, not gone, I don't know, but just solve them, revise them, and just if you like this, then please like it and share and subscribe. Thank you.